आप लोग में से बहुत जर्नलिस्ट लोग, मुझे आप लोगों ने पूछा कि मैंने OTT राइट्स या जो एस वॉर्ड सब्सक्रिप्शन राइट्स मैंने अपने फिल्म के नहीं बेचे। और उसकी वजह ये थी, उस वक्त मैं आप लोगों को साफ शायद बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह ये थी कि मुझे वो मॉडल ठीक नहीं लग रहा है। वो मॉडल मुझे कभी समझ में नहीं आया था और इसलिए मैंने ये नया मॉडल सोचा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मॉडल पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि देश के हर नागरिक को ये मॉडल पसंद आएगा और एक बार फिर सिनेमा जो है वो जिस बुलंदी पे लहराता था वो एक बार फिर लहराएगा, ये मेरी उम्मीद है। और मैं गुंजन से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने थॉट्स आपके सामने रखें एज यूट्यूब जो हमारे साथ इसमें पार्टनर कर रहे हैं। Thank you, Amir. Am I audible enough to everyone? Okay, fantastic. Good evening, everyone. What an incredible moment it is for Indian cinema and also for YouTube. आमिर ने आपके साथ अभी एकदम blockbuster news share कर दी है that सितारे ज़मीं पर is making its debut on YouTube on 1st of August, directly after its theatrical release. And on behalf of everyone in YouTube, I'm very happy and proud to say that we couldn't be more thrilled. We're so excited to partner with you, Amir. आमिर की जो ये विजन है, जो 15 साल से ये सपना चल रहा है, this democratization is a very powerful word. This is about making the stories of Indian cinema और हर storyteller की story available to everyone, everywhere. और ये जो मिशन है ये YouTube के मिशन के साथ perfectly align करता है. And therefore, the start of this partnership was absolutely a perfect thought for us. आमिर ने अभी आपके साथ share किया, this is not just about a film. It's about an altogether new direction for Indian cinema. और ये सिर्फ एक इंडिया की नहीं, ये एक global journey है. Because on YouTube, we are a platform to take Indian cinema to the world stage. And Indian cinema is absolutely ready. तो हम जो करने की कोशिश है वो ये है to bring together this shared vision and to explore a new frontier for Indian storytellers. And the possibilities are really immense. पर इससे पहले कि मैं उन possibilities की बात करूं, I want to share with you कि जो YouTube और Indian cinema का रिश्ता है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है. For years, YouTube has been the ultimate launchpad for our favorite films, चाहे बड़ी हो या छोटी हो. It powers their promotion and discovery. ज़रा सोचिए, वो teasers, वो music videos, वो songs, वो trailers, behind the scenes magic, और अब तो वो और सब और भी amplify हो रहा है. This is where the excitement begins. The time when the audience falls in love, चाहे वो story हो, वो star power हो या वो song हो. So taking the example of सितारे ज़मीं पर and talking some numbers, जब से आमिर ने ये channel launch किया है अपना April of this year, from that time to now, already the videos associated with just सितारे ज़मीं पर and not any of the other content on this channel has already received 350 million plus views. Now that's a dramatic reach that this platform is already bringing to सितारे. Beyond promotions, YouTube एक ऐसा platform है जहाँ पे audiences एक vast library of, as we call it, films on demand या movies on demand enjoy कर सकते हैं. So now with सितारे, I think जो आमिर की vision है, which is very groundbreaking, because we are moving to it right after the theatrical window. And therefore, it establishes, we believe, also YouTube as a premier destination for post-theatrical film and media content. I'm so excited about all the possibilities that we've been discussing, and this is just
very much the first step, we believe, on a big, incredible opportunity for Indian cinema. कुछ points मैं आपके साथ share करना चाहती हूँ on what is this true democratization about. So, firstly, YouTube as a platform, and Amir ने इसको allude किया, we offer unparalleled global reach. And we want to really put control in the hands of the content owner. जो फिल्म मेकर है, जो क्रिएटर है, वो खुद हर चीज़ डिसाइड कर सकता है प्लेटफॉर्म पे आने के लिए. So I know in media you all love some numbers, so let's talk some numbers here. Just in India alone, according to ComScore, YouTube touches 4 out of 5 internet users above the age of 18. So almost the adult population of internet users, a large proportion of them are already on YouTube. And thinking of the international space globally, just entertainment content, जो हम सब मीडिया और मूवीज़ के थ्रू या बाकी म्यूज़िक वीडियोज़ के थ्रू देखते हैं, the entertainment content alone is generating on a daily basis 7.5 billion views. Let us just think in. This is not monthly, as Amir keeps reminding me. Yeah, it's daily. ये हर दिन 7.5 billion views हो रहे हैं videos के globally of entertainment content. Now that's a really vast universe. From a village in Assam like Majoli to the bustling streets of Mumbai, a city that we all love, and from Bengaluru to Boston to Bali, the whole world is at the doorstep when it comes to Indian cinema now, with the power of digital, and at least as YouTube as a platform, we are very happy and excited to partner with Amir and to partner with the Indian cinema industry on this journey together. I want to underscore, जो आमिर ने कहा, सब flexibility और सब control उनके हाथ में है. The filmmaker decides, and therefore this is the ultimate democratization. Second चीज़ मैं आपके साथ share करना चाहूँगी that this is also about the democratization for the audiences. We want to meet the audiences on every screen, in every home, whether it's the mobile phone in your hand or the smart TV in your living room. आमिर ने शेयर किया कि this movie का जो concept है, ये एक family film का concept है, and therefore he would love for more and more people to view it like a family. And I'm very pleased to share with you that if we look at the recent data, and if you just look at the EY report, nearly 50 million households are already equipped with what we call connected TVs. Now that's a very large number already, and therefore जो सिनेमा का मैजिक है वो बड़े थिएटर से होम थिएटर पे अब उनके साथ आ सकता है. You can view it as a family, but at the same time the theater is also in your pocket now, and anywhere, everywhere, on demand is the vision and the future that we want to embrace jointly with you. Last but not the least, I want to say that ये जो journey है ये सिर्फ movie consume करके finish नहीं हो जाती. YouTube is a place where fandoms get created. And that is where the role of Amir Khan Talkies comes in. So this is not about अगर एक movie place करनी है. This is where people are engaging with the content, and we are really hoping it allows filmmakers like Amir to really build a long-lasting legacy. So in short, this is really about, as YouTube, we want to roll out the red carpet and help Indian cinema and Indian storytellers get onto the global stage, be digital, embraces like the industry, like he said, with confidence, full control, and full flexibility. Thank you. Thank you, Gunjan. तो मुझे यकीन है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो आप लोग प्लीज अपने सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं. जी हाँ, जी हाँ, माइक दे दें. Are there mics? Yeah. I have one. Hi, Amir. Can you see me here? Hello. You're Yeah, I can 11 see. o'clock. Yeah.
Hi, I'm Hi. from Brute, India. Hi. Nice to meet you guys. Hi. You guys are starting with a brilliant film, of course, a family-oriented film. But are more of your movies going to be on YouTube? We're all waiting for that answer. Sure. So Amir Khan Talkies is the destination where मैं हिंदी में जवाब देता हूँ. आमिर खान टॉकीज़ वो जगह है जहाँ मेरी सारी फिल्में आप देख पाएंगे आमिर खान प्रोडक्शंस की. तो जैसे लगान है, दंगल है, पीपली लाइव है, जाने तो या जाने ना है, दंगल है, तारे ज़मीं पर है, जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शंस में बनाई हैं वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीं पर, सिर्फ सितारे ज़मीं पर मिलेगी. और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे. तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी. इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका जैसी फिल्में. तो वो फिल्में भी आप आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे. आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा. आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा. जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्ते में विजयते, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें. वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है. तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं. इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए. तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुंचता है और हम उस फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकीज पे डाल सकते हैं. यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई खरीदता नहीं उनकी फिल्म अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको एडवांस में तो कुछ पैसे मिलते नहीं, जब लोग देखते हैं आपको कमाई होती है. ये सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग कमाने का, कि आप परफॉर्म करें, आपका काम अच्छा है तो आप कमाते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कम कमाते हैं या नहीं कमाते हैं. तो जो भी वो फिल्म कमाएगी, जो यंगस्टर की फिल्म है, यंग डायरेक्टर, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग एक्टर्स की फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जाए और मिनिमम प्रॉफिट AKP रखे एज अ फी, ताकि यंग फिल्म मेकर्स को कमाने का मौका मिले, वो अच्छा काम करें, वो भी कमाएं. तो हम एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहेंगे नए कंटेंट के लिए. जी जी. Hi, Amir. हेलो हेलो. एक तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सिंगल स्क्रीन सिनेमा की व्यवस्था तो ध्वस्त. Should I continue? हेलो हेलो. जी. मैंने कहा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सिंगल स्क्रीन की व्यवस्था तो इंडस्ट्री तबाह कर चुकी है. तो एक आम आदमी के पास सिनेमा नहीं पहुंचता था, आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत जी. बहुत साधुवाद आपको. थैंक यू. और दूसरा सवाल मैं गुंजन से पूछना चाहता हूं कि क्या ये रेड कारपेट और ये डेमोक्रेसी सिर्फ बॉलीवुड के ब्लू ब्लड के लिए है? क्योंकि OTT भी शुरुआत में यही थॉट से आया था कि सिनेमा बढ़ाएंगे और ये, और वहीं पे घूम फिर के वही ब्लू ब्लड को प्रायोरिटी, एक आम फिल्म मेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, 2-2, 3-3 साल का इंतजार कर रहा है. तो ये जो इंथुजियाज्म है या ये जो आपने बाहें खोली है इंडियन सिनेमा की, ये आम लोगों के लिए भी उतना सपोर्ट होगा, आम फिल्म मेकर के लिए? आई एम सो ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि एक्चुअली यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम हमेशा से इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड हैं कि हम हमेशा से डेमोक्रेटिक हैं. ये कोई नई चीज़ नहीं है. यहाँ पे कोई भी छोटा फिल्म मेकर, बड़ा फिल्म मेकर, अगर आप फिल्म मेकर नहीं भी हो, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, और एक क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूट्यूब हैज़ बीन फेमस ग्लोबली, तो हर कोई आ सकता है. दिस इज़ अ फुल डेमोक्रेसी. वीडियोस वायरल हो जाते हैं, स्टार्स बने हैं,
on the full power of just bringing your content in and being able to win. तो ये सबके लिए है, यहाँ पे कोई discrimination नहीं है कि ये आ सकते हैं, कोई और नहीं आ सकते. But every content is possible to bring, और वो कैसे perform करेगा वो content की power पे depend करता है. Hi Amir, Samina here from Zoom Channel, Times Hi. Television Network. Hi. My question is to you is that about, you are saying that it's going to be 100 rupees per pay-per-view. Will that be a package, or how do you kind of, divide that? Will we have a package now because it's Amir Khan movies? Will we get a certain package of a monthly package to watch? No, right now there is only one film on Amir Khan Talkies. From 1st August there will be only one film. इस वक्त 1st August से एक ही फिल्म होगी आमिर खान टॉकीज पर, वो है सितारे ज़मीं पर, जो हमारी नई फिल्म है. तो वो आप 100 रुपये देख के उसको रेंट कर सकते हैं. इसके मैं टेक्निकलिटीज़ बता दूं. जब आप रेंट करते हैं तो आपके पास 30 दिन तक वो आपके पास फिल्म है आपके अकाउंट में. लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो जब से आप देखना शुरू करते हैं तब से आपके पास 48 घंटे हैं कि आप उस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं. दिस इज द फॉर्मेट. The second question Yes, is to you, Gunjan ma'am. The question to you is that now how do you control the copyright infringement? Because many a times films which are on a pay-per-view are already uploaded by fans, fan clubs like that, and we get to see in a good quality as well. How do you control that? So we actually take a lot of effort to ensure that the rights of the content owners are very well protected. There are primarily two ways in that happens. One is that the content owner is equipped with tools to actually be able to detect and mark. At the same time, our algorithms detect any content which does not originate from the copyright owner, and they're explicitly taken down. So this is a constant journey for all copyright content, not just for the film industry, but more broadly. My question is for एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम एक किफ़ायती दाम में लोगों को फिल्म दे रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर होगा पायरेसी पर. देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, वो पायरेसी इसलिए करते हैं. किसी आदमी को चोरी नहीं करनी है. हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, किसी को चोरी नहीं करनी. लेकिन होता क्या है कि बहुत वक्त से हमारी फिल्में पहुँच नहीं पा रही थी. हम किस तरह पहुँचे लोगों तक? इतने बड़ा देश है ये. तो सैटेलाइट पे जब फिल्म आती है 1 साल के बाद, तब एक्चुअली बल्क ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से तब देखता है. लेकिन उसमें आप एड्स देखते हैं साथ में, तो एक जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है फिल्म देखने का, कि आपने फिल्म शुरू की और आखिर तक आप विदाउट डिस्टर्बेंस देख पाते हैं, तो वो एक ऑन डिमांड पेपर व्यू मॉडल में मुमकिन है. जी, मेरा सवाल दोनों से है. गुंजन जी, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक यूट्यूब इज डूइंग इनफ. इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एक्चुअली. मेरे अंकल की फिल्म है द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ राजस्थानी सिनेमा, 22-40 आसर, ये वो 50 लोगों ने डाल दी है यूट्यूब पर लेटर्स लिख के पागल हो गए हैं, लेकिन नथिंग इज डन. आई गेट कॉल्स, आई हैव रिटन आर्टिकल्स अबाउट प्रोड्यूसर्स who have written to YouTube, and YouTube is supporting the pirate. So I don't think YouTube is doing much. You all need to do 1,000 times more, not just more, 1,000 times more. That is besides the point. My question is to both of you. but let her answer that. Yeah, I was. We'll take your next question after We that. will give you. चांस तो दो. we'll आपने give इतना you बड़ा ample, एलिगेशन लगाया है. we'll give जवाब you- का मौका तो दो यार. We'll give you ample questions. No, first of all, thank you for highlighting it, because look, we take our responsibility very seriously. We are also dealing with volumes of content, so I think the more these things become known, the more they can be addressed. From a policy perspective, it is absolutely very clear that we protect copyright rights. Now, I don't know the details of your specific case, but some of my team is right here, so at least we can make sure that we understand it better and take it forward. Thank you. Now the question. आमिर and गुंजन जी, आप दोनों के लिए, आमिर 100 रुपए की प्राइस कैसे तय की, द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट, एंड गुंजन जी आप अगर हमको ये समझा सके, हर इंसान जब, ये तो एक नया चैनल है, इट्स अ ब्रेक थ्रू, पाथ ब्रेकिंग चैनल, तो some projections about how much this film can get from YouTube. Some projection. I don't mean to say you commit to us, but क्या project किया है आप लोगों ने? एक्चुअली कोमल, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक
नए सफ़र पे निकले, इट्स लाइक हम लोग एक्सप्लोरर्स की तरह निकले। जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था शिप में, तो वो इंडिया आने के लिए निकला था, वो पहुंच गया अमेरिका। तो हम लोग एज एक्सप्लोरर्स निकले, हमको नहीं पता ये रास्ता कहाँ हमको ले जाएगा। तो जब ये 1 अगस्त को लॉन्च होगी तो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो नंबर जो आप पूछ रहे हैं, वो 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, 5000 देखेंगे, 50,000 देखेंगे, 5 लाख देखेंगे या 5 करोड़ देखेंगे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। हम लोग बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पहली दफ़ा कर रहे हैं और ये हमारी कोशिश है। और अगर ये कामयाब होती है तो फिर ये मेरे हिसाब से न सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए, लेकिन वर्ल्ड सिनेमा के लिए ये एक मॉडल बन जाता है कि लोग थिएटर में आ सकते हैं, फिर वो पेपर व्यू मॉडल यूट्यूब पे आ सकते हैं, जिसकी रीच बहुत बड़ी है। तो इस नंबर का मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि मैं तो चाहता हूं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से हर एक हिंदुस्तानी मेरी फिल्म देखे। मेरी चाहत तो वो है, मैं चाहता हूं एज ए क्रिएटिव पर्सन मेरी फिल्म हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे। Hi. 100 रुपीज का फिगर हम कैसे आए? तो इट इज अ फैक्टर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिल्म ऑल्सो एंड व्हाट वी फील माइट बी अफोर्डेबल फॉर एन ऑडियंस। तो हम लोग ने एक बैलेंस रखने की कोशिश की है। आज अगर आप पेपर व्यू का मॉडल देखते हैं, वीडियो ऑन डिमांड का मॉडल जो देखते हैं, अभी भी है एक छोटे पैमाने पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो उसमें कहीं पे 250 है फॉर रेंटिंग, कहीं पे 230 है, कहीं पे 180 है, कहीं पे 170 है। तो हम लोगों ने सबका मिनिमम पकड़ा है, हमने 100 रुपये रखा है। और वो 100 रुपये हमने इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर आदमी तक पहुंच सकें। देखिए, एक वक्त पे कोमल ये मास मीडियम कहलाता था। आज मुझे लगता है कि मास शायद वो फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल कर पा रही है सिनेमा की। मैं इसको दोबारा मास मीडियम बनाना चाह रहा हूं। मेरी फिल्म हर इंसान देख पाए और छाती ठोक के देख पाए, इज्जत से देख पाए, बगैर उसको चोरी किए हुए। उसको चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, वो इज्जत से मेरी फिल्म देख पाए, हर आदमी देख पाए। तो इसलिए हमने ये प्राइस रखी है, जो ये सब मद्देनजर रखते हुए। Amir, hi. Hi, Amir. Amir, Amir. Hi, Over Amir here, on your here, left. here. This is Sohail from Instant I'll Bollywood. just take her, then I'll come to you. Amir, before the film released, in all your interviews, you'd said that all the reports of the film coming on YouTube were fake reports. Yeah. And at that time, you also mentioned and gave an analogy that how a film, if it comes after 8 weeks Correct. on OTT, whether Correct. it's YouTube or any platform, it just dilutes the whole purpose of releasing No, I it. didn't say that. No, you said that. Why will you watch I'll tell you the what I same said thing? and I'll tell you what I No, didn't say. Let me just complete my question. Yeah. So, first of all, of course, that at that time was YouTube already in talks with you and you were hiding it from us or lying to us. Secondly, that when the film which released in June, if now it's coming in August on YouTube, does the business of the film not get affected when its theatrical run is already going on? Something which you had mentioned then in the interview. Sure, absolutely right. So first of all, let me tell you that जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी फिल्म YouTube पे आ रही है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं और कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे थिएट्रिकल बिजनेस प्रोटेक्ट करना था। मेरी शुरुआत हुई है सिनेमा से, और मैं सिनेमा से थिएटर से बहुत पहले हूं, तो हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि थिएट्रिकल बिजनेस को मैं प्रोटेक्ट करूं। तो मैं चाह रहा था कि जब हम पहली दफा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग उस वक्त थिएटर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करें। और इसलिए 2-4 लोग जिन्होंने मुझे ये सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं YouTube पे नहीं आ रहा हूँ। वो मुझे कहना पड़ा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो झूठ कहना पड़ा, वरना ये पूरा जो एक सपना था मेरा, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता। दूसरी चीज़, पेपर व्यू मॉडल और सब्सक्रिप्शन मॉडल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं 8 हफ्ते बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आता हूं, तो जिसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है जिस भी OTT का, वो मेरी फिल्म खरीद नहीं रहा है। वो उस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जो फिल्में आ रही हैं वो खरीद रहा है। फिर 2-4-6 महीने बाद मेरी फिल्म आ जाती है, तो मेरी फिल्म उसको आ गई गलती से, उसको मन है देखने का, नहीं है देखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मैं 1000 कदम लूंगा अपनी ऑडियंस की तरफ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस एक कदम ले मेरी तरफ। तो जब हम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाते हैं तो हम आप मोरलेस फ्री दे रहे हो ऑडियंस को। ये वही मॉडल है जो थिएटर का मॉडल है, पेपर व्यू मॉडल थिएटर में भी वही चलता है और आगे से यूट्यूब पे वही चलेगा। मैं चाहता हूं कि थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। आप 300, 400, 500 लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं, आप साथ में हंसते हैं, आप साथ में एंजॉय करते हैं, आप साथ में ताली मारते हैं, वहां पे एटमॉस साउंड होता है, वो एक पूरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है और ये एक अलग एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस में एज एन ऑडियंस मुझे ज्यादा अमेजमेंट हो सकती है। इस मॉडल में जो यूट्यूब का मॉडल है उसमें कन्वीनियंस ज्यादा है। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर फ्रैक्चर है, मैं 2 महीना घर से निकल नहीं पा रहा हूं, मुझे कोई और तकलीफ है, तो मेरी फिल्म मिस हो जाती है, फिर मैं कैसे देखूं? सो दिस इज टू कवर अप दैट। तो मेरी फिल्म जैसे आपको पता है OTT चैनल्स पे या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं आई है और उसकी वजह ही ये थी कि मैंने ये प्लान किया था कि जब हम थिएटर से हमारा बिजनेस खत्म होगा तब हम पेपर व्यू मॉडल पे आएंगे और यूट्यूब पे आएंगे। ये मेरी पहले से प्लानिंग थी। हाय, दिस सोहेल जी, जी, फ्रॉम बॉलीवुड। Yeah. आपको और गुंजन को बहुत बहुत बधाई हो। मुझे जानना था, ये आमिर खान टॉकीज जनता का थिएटर, ये है आमिर खान बिजनेस पर्सन के दिमाग से आया है या फिर योर लव टुवर्ड्स सिनेमा, ये क्वेश्चन है। और द सेकंड दोनों। मैं एक क्रिएटिव इंसान भी हूं और चूंकि मैं एक प्रोडक्शन हाउस संभालता हूं, मुझे बिजनेस भी संभालना पड़ता है। तो अगर जो हम फिल्में बना रहे हैं, एक तो क्या है कि जब मैं सितारे ज़मीं पर भी कर रहा था तो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप सितारे ज़मीं पर क्यों कर रहे हैं, आप कोई एक्शन फिल्म करिए। अब क्या मैं हर फिल्म, हर एक्टर और हर डायरेक्टर सिर्फ एक्शन बनाए? क्योंकि थिएटरों में सिर्फ लोगों को एक्शन फिल्में देखनी है या बड़ी स्केल की फिल्म देखनी है, बस हम अभी वही फिल्में देखेंगे। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे अलग अलग फिल्में बनानी है। मुझे पीपली लाइफ भी बनानी है, मुझे धोबी घाट भी बनानी है, मुझे डेली बेली भी बनानी है, मुझे दंगल भी बनानी है। हर किस्म की फिल्में बनाना चाहता हूं। तो इस तरह मुझे फ्रीडम मिलता है कि मैं जो चाहूं मैं बना सकता हूं। आई एम नॉट हेल्ड बैक बाय एनीथिंग। तो ये क्रिएटिव वजह से भी मैं कर रहा हूं और बिजनेस वजह से भी मैं कर रहा हूं। बिजनेस वजह से मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि सिनेमा जो है, जो आज के डेट में हम सब जब हम अलग से बैठते हैं तो हम बात करते हैं कि किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका है कि हम सिनेमा को वापस दोबारा एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशन बना सकते हैं। तो ये एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए प्रोड्यूसर दोनों चीजें मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया। आमिर, आपने कहा था कि पायरेसी की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि इवन टुडे ऑन द वेरी फ्राइडे नाइट यू गेट सो मेनी न्यू फिल्म्स। फ्राइडे रात, जो फ्राइडे रिलीज होती है रात को आपको मिल जाता है, व्हाट्सएप पे आ जाता है PDF या डॉक्यूमेंट फॉर्म में, इनफैक्ट ऐसा है। तो वहाँ पर आप किस तरह से कब करेंगे? एक वक्त था जहाँ पर इंडस्ट्री पायरेसी के लिए जुलूस निकालते थे, मतलब वी हैव लाइक इतना बड़ा जुलूस निकलता था जहाँ पर हम स्टॉप पायरेसी करके करते थे। लेकिन आज इन दिनों ज़्यादा लोग बात नहीं करते पायरेसी को लेकर और इट इज़ अफेक्टिंग अ लॉट। एंड उसकी वजह ये है जुलूस क्यों नहीं निकलते हैं, क्योंकि जुलूस निकाल निकाल के हम लोग थक गए, कुछ नहीं हुआ। जब वीडियो आया पहली दफा तो हमको लगा इंडस्ट्री खत्म हो गई, वीडियो जो है इंडस्ट्री को मार देगा। बहुत सारे जुलूस निकले थे वो टाइम पे, कुछ नहीं हुआ। पायरेसी को लेकर कुछ नहीं हुआ। फिर VCDs और DVDs आ गए, फिर उसके बाद केबल आ गया। पूरा मोहल्ला एक साथ, मतलब फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, रात को 9 बजे पूरा मोहल्ला देख रहा है देश भर में। आप लोगों को याद होगा ये सारी बातें। तो हर दफा इंडस्ट्री ने कुछ ना कुछ, हर 10 साल में एक सुनामी आता है, हमको लगता है हम खत्म हो जाएंगे। और इस वक्त भी हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये एक कोशिश है उसमें से निकलने की।
Amir, hi, Sana here from India Today. Hi. Firstly, I'll use the analogy that you used during the promotions of a Maruti car. So this is mostly like renting a Maruti car for your trips. Do you agree to that? And secondly, you had spoken about how you wanted your film to have a full proper 6 months of theatrical before it goes on OTT. This is not even 8 weeks that the other OTT platforms That is kind of because decide. OTT is a totally subscription model. It's a totally different model. आज भी मैं कहूँगा कि OTT अगर मुझे मेरी फिल्म OTT पे डालनी है, मुझे OTT से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई उनसे बैर नहीं है, लेकिन मुझे वो टाइमिंग सूट नहीं करती. वो जो 2 महीने के बाद 8 हफ्ते के बाद हम OTT पे आ जाते हैं, वो मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं उससे हट गया हूँ. मुझे नहीं लगता कि जो वीडियो ऑन डिमांड मॉडल है या पे पर व्यू मॉडल है, वो आपके थिएट्रिकल बिजनेस को अफेक्ट करेगा. So मुझे going नहीं forward, लगता. all your films will release in like 6 or 7 weeks, or you've decided on a time frame, Amir? जी हाँ, मेरी यही कोशिश रहेगी हमेशा कि पहले मैं अपनी फिल्म जो है थिएटरों में लाऊं, और एक दफ़ा थिएटरों में उसका व्यूअरशिप हो गई है, फिर मैं उसको पेपर व्यू या यूट्यूब पे लाऊं. ये हमेशा मेरी कोशिश रहेगी. And also there were rumors of a 120 crore figure that you got offered by other OTT platforms. What are the figures that we are talking about when it comes to YouTube pay-per-view? And Gunjan, I'll ask you again, but firstly, Amir, you want to... देखिए, जैसे मैंने कोमल से कहा, मैं आपको अंदाज़ा नहीं दे पाऊंगा कि इसका क्या बिजनेस पोटेंशियल है, क्योंकि हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता. लेकिन मैं इतना आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, और वो इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आया जब मैं OTT के ऑफर्स को ना बोल रहा था और बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे. आप बिल्कुल सही नंबर्स के आसपास बोल रही हैं. मुझे वो 125 करोड़ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लेटफॉर्म का नहीं चाहिए. वो 125 करोड़ मुझे नहीं चाहिए. मुझे 100 रुपए मेरी ऑडियंस का चाहिए. जो हिंदुस्तान का हर बंदा है, मुझे उसके 100 रुपए चाहिए. मेरे को 125 करोड़ वो बड़ी कंपनी की नहीं चाहिए. मेरी ऑडियंस है, मुझे मेरी ऑडियंस पे भरोसा है, मुझे अपने काम पे भरोसा है. मेरा काम अच्छा होगा तो ऑडियंस मेरी फिल्में देखेगी, थिएटर में देखेगी पहले, और फिर जब पेपर व्यू यूट्यूब पे आएगी तब देखेगी. सो आई एम इंटरेस्टेड इन द 100 रुपीज ऑफ माई ऑडियंस, नॉट द 125 करोड़ ऑफ सम प्लेटफॉर्म, जो जिससे मुझे लगता है कि ये सिनेमा को नुकसान हो रहा है. मैंने वेव्स में भी ये बात खुलासा किया था इस बात का कि मुझे लगता है इससे हमको नुकसान हो रहा है. तो जिस चीज से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, अगर मेरे अकेले का फायदा हो रहा है इस डील में, वो डील में मुझे नहीं आता कैसे करूं मैं, क्योंकि लॉन्ग रन में ये इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाली है. इसलिए मैंने उसको ना बोला. आज हम लोग इस मॉडल में कितना कमाएंगे मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता मुझे. But Gunjan, is YouTube paying to acquire these movies, firstly? Secondly, are you also working with other production houses to get their films on OTT, on YouTube? And thirdly, will this pay-per-view will be award or basis? Will there be ads also included? And what's the business like for YouTube planned? I'll try and take all your 3 questions one by one. So I think first and foremost, YouTube's model is